Hello everyone. As you have already aware that there are less than 30 days left for the CAT 2023 exam. So in this video we are going to discuss everything that you need to ensure that you prepare in the last 30 days, or even if there are less than 30 days you can still apply this method. And we are going to discuss what is the exam about, how can you prepare in the last 30 days. If you have already prepared well till this point, then this should be helpful for you. Okay, so first let's discuss the exam scenario, that what is the exam, what is the demand of the exam. We have 40 minutes for each section ke liye we have 40 minutes. In this 40 minutes we get 4 passages of medium to high difficulty, each containing 4 to 5 questions each, and 6 to 8 verbal ability questions, which includes topics such as para jumbles, para summary, and para completion. Okay, if you want to get 99 percentile in CAT, you need to get 95 percentile in all the 3 sections. If you get 95 percentiles in all the 3 respective sections, English, Quant and LRDI, you get overall 99 percentile. So in order to get 95 percentile or above in English, you need to ensure that you solve 50% questions with 100% accuracy. So this is the target. If you ensure that this is what you achieve in every section, you will get a 99 percentile. That is my guarantee. Okay, so target is that you need to solve 12 to 14 questions out of a total sectional question set of 22 to 24 questions. Okay, so first in the last month for vocabulary, I'm recommending first only that if you are weak in your vocabulary, or if you are not able to keep up with the vocabulary that is given in the passages, I highly recommend that it's still not late. You can read Word Power Made Easy by Norman Lewis. This book is a great book for revision. It will still help you. You can finish this book. You can, skim through it in 4 days easily, and you will be able to understand words, at least 12 to 1500 words you will be able to understand if you read the book. So it's still not too late. You can revise this book for your vocabulary. It's a great book. Read newspapers, because after your CAT, you will be required to give group discussion, personal interviews, written ability test, and also RCs are really a very important topic which you can cover in newspapers. So read newspapers, the Indian Express, the Hindu, highly recommended. Okay, and you can also read blogs from Aeon in the last 30 days. But this is also not that important. But you should keep in mind that if you want to review your vocabulary, this is a highly recommended book. Okay, do read it. Okay, now in the last 30 days we expect that you should not learn anything new. Okay, you have already learned what you already learned. You don't need to learn new tricks now. Now, as you already know that in each section we need to ensure 50% questions, 50% marks we need to ensure. तो that means कि आप कुछ पार्ट छोड़ भी सकते हो. आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन हाँ, आपको पिछले आखिरी के 1 महीने में सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं. पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं. हर 2 से 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देनी ही चाहिए. ओके, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने का स्कोप है नहीं. अब आपको पिछले जो भी आपने सीखा है उसमें आपको रिवीजन करनी है, और आपको देखना है कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही, वो किस मिस्टेक्स कमिट नहीं करनी है. तो एनालिसिस करते वक्त भी क्या करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आखिरी का 1 महीने में आप हर 2 दिन में एक आराम से कैट का पेपर सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट एक सेक्शन की बात जहाँ तक मैं करूँ, इंग्लिश सेक्शन तो आप हर रोज़ एक पेपर का भी उड़ा सकते हो, लेकिन हम कंफर्ट स्पेस के लिए हम 2 दिन भी पकड़े तो आप 1 महीने में 15 पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो. और कम से कम अगर आप 3 दिन में 1 पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर आप पूरे तीनों सेक्शन एक साथ में सॉल्व कर रहे हो, तो आप 10 पेपर फिर भी आखिरी के 1 महीने में आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो आखिरी का 1 महीना हर रोज़ एक पेपर लेना है पिछले साल का, उसे सॉल्व करना है, टाइमर लगा के देखना है कितने राइट आए कितना रॉन्ग आया, उसका पूरा एनालिसिस करना है, और उसके बाद दूसरा पेपर करना है, फिर तीसरा पेपर करना है, फिर चौथा पेपर करना है. इंश्योर करना है कि आखिरी तक पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले तक अपने एटलीस्ट 9 से 10 पेपर पिछले साल के हो जाने चाहिए, जिसमें अपना डीप एनालिसिस भी हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं एनालिसिस बाद में करेंगे, एनालिसिस सॉल्व करने के बाद ही करना है अपने को.
सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है, सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस में क्या क्या करना है, सबसे पहले आरसीज। आरसीज में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहली बात तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके हर आजू बाजू हर जगह है। न्यूज़पेपर में भी पूरे आर्टिकल्स आरसीज ही है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप वर्ड पावर पढ़े, आप कोई किताब पढ़े, आप पेपर सॉल्व करें, आपको आरसीज में एक पर्टिकुलर तरीके से एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रीवियस मिस्टेक्स, आपने पूरे पिछले साल के प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियाँ की, वो सारी गलतियों को ध्यान में रखना है। अब आपका रिवीजन टाइम है, अब वो मिस्टेक्स को एकदम पिन पॉइंट करके दिमाग में बैठा लो कि ये मिस्टेक मैंने की हुई है, ये मिस्टेक का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फरेंस। सारे क्वेश्चन टाइप्स और उनका अप्रोच आपका क्लियर होना चाहिए। कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑप्शन को पहले ट्रू में कंसिडर करना है, फिर देखना है कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट इसमें वीक हो रहा है कि स्ट्रेंथन हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले आपका मेन आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो अपनी अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए। अप्रोच में पहले से ही क्लियर रखो कि ये क्वेश्चन टाइप में अपने को ये अप्रोच रखना है। ये आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन का अपना एक एनालिसिस होता है। क्वेश्चन पढ़ना सिर्फ आधा काम है, फिर ऑप्शंस में भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है। इन्फरेंस के क्वेश्चन में वो बहुत बार आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जो पैसेज में दिया हुआ है, और एक ऑप्शन ऐसा देता है जो पैसेज में नहीं दिया हुआ है लेकिन वो सही आंसर होता है। तो ये सारे ट्रैप्स का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप्स, अप्रोच, उनका एनालिसिस डीप होना चाहिए, प्रीवियस मिस्टेक्स पे ध्यान होना चाहिए एनालिसिस करते वक्त। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन फॉलोसी से बचना चाहिए। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन फॉलोसी का मतलब यह है कि हर आरसी का एक ही इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि हर आरसी एक ऑथर के द्वारा लिखी गई है। इट मीन्स कि ऑथर का एक पर्सपेक्टिव होगा, हमको ऑथर के वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को पकड़ते आना चाहिए। तो देयर आर नो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। बहुत कम केसेस में जब ड्रीम एनालिसिस या फिर साइकोलॉजी के पैसेजेस जब आते हैं तब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का स्कोप हो सकता है, लेकिन मोस्टली 90% ऑफ द टाइम आप ये पाएंगे कि एक आरसी का एक ही इंटरप्रिटेशन होता है। आपको वो एक इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ना है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन से बचना है। ठीक है, इस पे थोड़ा कॉन्शियस रहो इसके बारे में, सो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, उसके बाद वर्बल एबिलिटी में पैरा जंबल्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन पॉइंट का ध्यान रखना है कि मेन पॉइंट क्या है। इफ यू हैव अ गाइडिंग प्रिंसिपल देन ओनली यू कैन अरेंज दोज जंबल्ड अप सेंटेंसेस। तो पैरा जंबल्स में मेन पॉइंट, कनेक्टिंग वर्ड्स, ऑल्सो, ऑल्दो, हाउएवर, बट, ये सब का ध्यान रखना है। कंजंक्शंस को ध्यान से देखना है, प्रोनाउंस को ध्यान से देखना है, ही, शी, बट, दे, दोज, दैट, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान से एक बार एनालिसिस कर लेना। पैरा कंप्लीशन में आपको पता है कि जहाँ पे भी आपकी फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, दैट फिल इन द ब्लैंक में जो भी सेंटेंस आएगा इट शुड बी कनेक्टेड टू द प्रीवियस सेंटेंस एज वेल एज टू द सेंटेंस विच इज नेक्स्ट टू इट। ठीक है, सिमिलरली आपको इसका भी एक एनालिसिस कर लेना चाहिए, इसका एक अप्रोच क्लियर रखना चाहिए। हाईली स्कोरिंग सेक्शंस होता है क्योंकि फिर पैरा समरी, समरी मतलब आपको उसका मेन पॉइंट पकड़ना है। यहाँ पे भी मेन पॉइंट ही पकड़ना है हमें। पैरा समरी, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको मेन आइडिया देखना है और वही आपका समरी होगा। ठीक है, ये सब वर्बल एबिलिटी का काम हो गया। एक हो गया टाइम मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आखिरी के 30 दिन में टाइम मैनेजमेंट में डीप काम होना चाहिए। कैट का फंडा ये है कि आपके पास 40 मिनट है, आपके पास 40 मिनट है और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 13 से 14 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज ईच क्वेश्चन को आपको 3 मिनट मिलेंगे, 3 मिनट्स विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं 40 मिनट को कैसे ब्रेकअप करूंगा, मैं 3 पैसेजेस करूंगा। 3 पैसेजेस को मुझे पता है कितना टाइम लगेगा। अगर मैं हर पैसेज को 9 मिनट भी दूँ, जनरसली 8 to 9 मिनट्स भी दूँ, 8 to 9 मिनट्स, और उसको 3 पैसेज का मैं टारगेट रखूँ, तो मुझे एटलीस्ट 24 to 27 मिनट्स लगेंगे 3 पैसेजेस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 24 से 27 मिनट में मैं 3 पैसेजेस सॉल्व कर सकता हूँ। 3 पैसेजेस में मेरे 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, अज्यूम करके चलते हैं हम, 12 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मेरे पास 24 से 27 मिनट, अगर मैं 27 मिनट भी पकड़ूं तो भी मेरे पास 13 से 14 मिनट बचते हैं लास्ट के 8 क्वेश्चन करने को। आखिर के 13-14 मिनट में मैं 8 में से 5 भी कर लिया तो 12 + 5 इज
वेरी रिस्पेक्टेबल 17 to 18 अगर मैंने सेक्शन सॉल्व किया है अच्छे से, और मेरा अगर उसमें एक दो रॉन्ग भी हो गया तो भी आसानी से आई विल सिक्योर अ 95+ परसेंटाइल इन माई इंग्लिश। ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी बदल भी सकती है। अगर आपको आरसी बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप 2 आरसी करके ज़्यादा वर्बल एबिलिटी भी फोकस कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि क्योंकि आपके पास 40 मिनट का टाइम है, 3 पैसेजेस आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो पैसेजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। इसलिए बोल रहा हूँ एनालिसिस करो। पिछले साल के पेपर अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो अब सॉल्व करो, और एनालिसिस डीप होना चाहिए आपका। एक बार कोई मिस्टेक कर दी, उसके बाद वो मिस्टेक समझ में आ गई, उसके बाद यू शुड नॉट से कि अब मैं मिस्टेक कभी दोहराऊंगा। एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गया। तो सिंपल रखो फंडा। आखिरी के 1 महीने में क्वेश्चन पेपर उठाओ पिछले साल के, हर 2-2 दिन में, 3-3 दिन में एक पेपर सॉल्व करो, उसका डीप एनालिसिस करो, हर चीज़ को देखो, और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पहले से बना लो कि 40 मिनट है, मैं एक आरसी में 8 मिनट दूंगा, 9 मिनट दूंगा, 10 मिनट दूंगा, जो भी आपको देना है। इट्स देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, लेकिन अपने को मैनेजमेंट कैसा करना है कि अपने को 17 से 18 क्वेश्चंस कंफर्टेबली होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बना लो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं 3 पैसेजेस सॉल्व करूंगा ही करूंगा, किसी भी हालत में करूंगा, और उसके बाद वर्बल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। और फिर टाइम बचा तो जो एक पैसेज छूटा हुआ है उसमें मैं क्वेश्चंस को देख लूंगा कि कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन है क्या, कोई छोटा क्वेश्चन है क्या जो बिना पढ़े मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वैसे भी मैं क्वेश्चन चुराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि हाईली स्कोरिंग सेक्शन है इंग्लिश। जितना हो सके इसमें एक्सट्रैक्ट कर लो अपने मार्क्स को, आपको हेल्प करेगा टॉप आईएम्स में जाने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के एनालिसिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट मंथ। ठीक है, और वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी का रिवीजन मार लो, शुड सफाइस। और रोज न्यूज़पेपर पढ़ लो सुबह 1 घंटा, ये भी काफ़ी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आरसीएस की तैयारी होगी। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स, फ्रंट पेज, ओपिनियन पेज, ये सब भी पढ़ लिया, 2-3 पेजेस भी पढ़े और वर्ल्ड न्यूज़ भी पढ़ लिया तो भी इट शुड सफाइस। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट 30 days. See you on the exam day. All the best.